कर देती हूँ. Find all the roots of this, right? And write down that roots in Cartesian form and geometrically explain that कि ये root आपके कहाँ lie करेंगे. So first of all, we consider this complex number. Call this as Z0. Write down in the polar form or exponential form. So for polar form or exponential, we need to find out r and theta, right? So we calculate r. It is square root of x square plus y square. ये निकाला हमारा 16 आ गया. Next हमने tan inverse y upon x निकाला, ये pi by 3 आ गया. But since both are negative, it means our point is lying in the third quadrant. So whenever the point lying in the third quadrant, the argument will be tan inverse y upon x minus pi. So this is our principal argument of z. Z0. Z0 से represent किया मैंने. So now put the value of this Z0. It will be r into e to the power minus 2 pi by 3. This is the principal argument plus 2k pi iota. Okay, but we have to find its 1 by 4th root. So हमने 1 by 4th ले लिया दोनों तरफ. Now simplify this. So we get whenever your k is 0, 1, 2 and 3, then we get the distinct roots. After that it will repeat. Okay, so आपने remember क्या रखना है. अगर हम nth root निकाल रहे हैं तो आपके पास k 0, 1, 2, 3 till up to n-1 तक डिस्टिंक्ट आएंगे, एक कम तक. ओके, उसके बाद रिपीट होना शुरू होगा. तो 4 है तो हमने k 0, 1, 2, 3. So when you put k to be 0, you get first root which is 2 into e to the power minus 2 by 3 into 4 which is 12. तो आप simplify करोगे, you get e to the power minus 5 by 6. And when you put k to be 0, the first root is said to be the principal root. Okay, so now you have to express this in the Cartesian form. तो हमने इसको simplify किया. We can write this as 2 into cos minus pi by 6 plus iota sine minus pi by 6. Put the value of cos minus pi by 6 and sine pi minus pi by 6, you get this. So this is the first root which is the principal root in Cartesian form. Right? Similarly, when you put k to be 1, k to 2, 3, you get all the roots. Now we have to express geometrically. In each case your radius is fixed. This 2 is fixed. Angle आपका change हो रहा है. तो all these points they will lie inside a circle with the radius 2. तो हमने angle move करना है. पहला angle move किया minus pi by 6 and 2 distance cover किया. We will reach at this point. This is the first one. Similarly, next point के लिए आपने angle move किया and 2 distance cover किया. You will reach at the next point. Right? Similarly, the third one and fourth one. ये चारों quadrants में lie कर रहे हैं. When you join them, they are the vertices of some polygon. Here the polygon shape is square. So geometrically, all these roots of this, they lie on the vertices of a square, which is inscribed in a circle with radius 2. The point is clear? मैम ये लास्ट में जो सर्कल आया हम एक बारी वापस बता देंगे आप. सर्कल का बीच इक्वेशन क्या होता है? mod of z is equal to some value r. Yes ma'am. Right? तो mod of z यहाँ पर कितना है आपका निकला है? 16. नहीं, इस पावर करने के बाद 2 निकला है. Yes ma'am. तो हमारा 2 यूनिट का आपका ये एक सर्कल होगा रेडियस का. ओके ठीक है. अब इस सर्कल के अंदर हमने बताने हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स कहाँ लाई, रूट्स कहाँ लाई करने हैं ज्योमेट्रिकली. तो पहले के लिए हमने एंगल मूव करना है minus pi by 6 पहले रूट के लिए. तो minus pi by 6 आपने टर्न किया और ये आपका 2 डिस्टेंस है. फिर नेक्स्ट के लिए आपने टर्न किया, जितना निकलेगा k को 1 पुट करके वो आपका यहाँ पे लाई कर रहा है. फिर तीसरे को किया वो यहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ को किया वो यहाँ लाई. ओके मैं समझ गया. राइट? सो व्हेन यू जॉइन दीज ऑल वर्टिसेस, they will become these points, this will become the vertices of some polygon. Here the polygon shape is square which is inscribed in a circle with radius 2. Right? Yes ma'am. Thank you ma'am. Okay. Excuse me ma'am. Yes. Excuse me ma'am. बोलो बच्चे. मैम ये हमको जो हमारे जो भी ये रूट्स आएंगे, ये इनको हमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही लिखना है या फिर अगर कोई भी है तो चलेगा? पहले तो आप पॉइंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही लिख रहे हो. ठीक है, बट फिर उसमें आप टेक 2 के पाई कर रहे हो ना ऐड, तभी आपको ऑल रूट्स मिलेंगे.
यहाँ पे जब भी आपने एक्सप्रेस करना है ओनली प्रिंसिपल आर्गुमेंट में छोड़ोगे तो सिर्फ पहला रूट ही मिलेगा विच इज द प्रिंसिपल रूट। नहीं मतलब जैसे हमने k को 1 2 3 डाल लिया तो फिर हमको जैसे मैं भी k इक्वल टू 3 डाल रहा था तो ना 4 पाई बाय 3 मिला था, लेकिन वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज में नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ना फिर। नहीं नो नीड टू कन्वर्ट, जो आ रहा है वही लिखना है आपने। ओके, जो भी आ रहा है आपने वही लिखना है। 4 पाई बाय 3 आ रहा है 3 पुट करने पे, 3 को पुट करने पे 18 minus 2 16 by 12 4 पाई बाय 3। तो 4 पाई बाय 3 आपका कहाँ लाई कर गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। बस ठीक है, यहाँ आ गया आपका पॉइंट। अच्छा ठीक है ओके मैम, थैंक यू। नाउ चैप्टर 1 जो है वो आपका कंप्लीट है, इसमें यही आपने करना है। अब आप एक बार ट्यूट शीट देखो। सो ट्यूट शीट में तो ओनली क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो पहला क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेस्ड है। फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग, राइट? तो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक पूछूंगी मैं, -8 आयोटा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? पाई। Here your x is 0 and y is negative. -8 -π/2। क्योंकि x 0 है तो tan इनवर्स y अपॉन x, ये 0 आपके पास आया। सो y नेगेटिव है तो -∞ वैल्यू बन रही है। सो -∞ आएगी -π/2। सो द प्रिंसिपल आर्गुमेंट इन दिस केस विल बी -π/2। हो जाएंगे रेस्ट, ये तो हमने कर ही लिया है। यस मैम। नाउ नेक्स्ट टाइप की, और इस चैप्टर में से और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है आपके ट्यूट शीट में। तो जैसी ट्यूट शीट में प्रॉब्लम्स दे रखी है इसी टाइप का आपने सिलेबस में करना है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर है आपका 2। चैप्टर 2 में हम करेंगे मैम इसकी जो एक्सरसाइज हमें दे रखी बुक में मैम, वो सारी नहीं मतलब करना उसमें आपने, नहीं कुछ नहीं करना आपने, मैं वही बता रही हूँ। ओनली ट्यूट शीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करनी है। यस मैम। ओके, इसलिए मैं साथ साथ आपको ट्यूट शीट बताऊंगी। चैप्टर 2 है आपका एनालिटिक फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है? सेम रियल को ही एक्सटेंड करते जाओ। यू आर गिवन एनी मैपिंग व्हिच इज डिफाइंड ऑन वन सेट टू अनदर सेट। तो यहाँ पे जो दोनों सेट हैं वो आपके क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स, राइट? S भी आपका सबसेट है कॉम्प्लेक्स का, C भी आपका कॉम्प्लेक्स सेट है। तो एक मैपिंग, एक रूल जो कि इस सेट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे लेके जा रहा है, दैट फंक्शन इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, राइट? सो इफ मान लो S मेरा Z कोई बिलोंग कर रहा है S को, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज ऑफ द फॉर्म x + iota y, राइट? तो व्हेन वी अप्लाई दिस मैपिंग ऑन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। This W is a complex number. I can write as U plus iota V, where U and V they are real numbers. Okay? पर ये complete आपके पास क्या है? Complex number. FZ अप्लाई करने के बाद again आपको member मिलेगा complex का. So this mapping is said to be complex valued function. Okay? Domain set आपका वही होता है जहाँ पर ये function completely defined हो, well defined हो। जैसे for example अगर आपको एक mapping दे रखी है 1/z² + 1, तो डोमेन सेट बताओ इसका क्या आएगा? S सेट इस केस में क्या बनेगा? डोमेन क्या बनेगा? किन पॉइंट्स के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड हो रहा है? मैं सेट ग्रेटर देन आयोटा आ रहा है। कहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहा ये बताओ? जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, यस मैम। तो ये 0 है, इसका मतलब Z आपके पास ± आयोटा है, प्लस माइनस है ना? तो आपके पास डोमेन सेट क्या आ गया? ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो ये एक्सेप्ट के लिए या तो आप ऑब्लिक सिंबल डालते हो या माइनस, मींस इस सेट में से ये डिलीट कर दो नंबर्स। ओके, तो ये डोमेन सेट आ गया। सो डोमेन सेट क्या सेट होता है? वो वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है आपका। ये बताओ इसका डोमेन सेट क्या आएगा?
e to the power z? मैम ये तो जेड ही आएगा ना? यस, हम पूरा complex- कॉम्प्लेक्स जेड ही प्लेन आ आएगा। गया। पूरा कॉम्प्लेक्स। हाँ। ओके, फंक्शन है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये एक फंक्शन है। ये बताओ इसका डोमेन सेट क्या आएगा? Ma'am, that too will be complex. ये भी Complete माइनस complex? इंफिनिटी से इंफिनिटी। कंप्लीट कॉम्प्लेक्स? हाँ, कंप्लीट यस कॉम्प्लेक्स। मैम। नो, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड, Okay, ma'am. है ना? हमने किया था ये पॉइंट। Yes, ma'am. अगर Yes, Yes, x ma'am. भी जीरो हो गया, y भी जीरो हो गया, you cannot find tan inverse 0.0, so that is undefined. So here the domain set will be all those complex numbers except 0, right? Except जहाँ पर x 0 है और y 0 है. So this is the complex function. So any mapping, any rule which is going from one complex set to another set and completely defined होना चाहिए, well defined, that function is said to be complex function. Okay? So next Yes, आया ma'am. कि how to find out the limit of the complex function. अब लिमिट्स कैसे निकालोगे? अब आपके पास एक फंक्शन है which is complex function. We have to find out the limit when your z is going to z naught. इस पे लिमिट निकालनी है। z जो है that is approaching to z naught. So क्या करोगे आप? You will find out the limit as z is approaching to z naught. You have to see आपका फंक्शन किसको अप्रोच करता है। तो ये जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच करेगा that will become the limit of this function at z naught. This point is clear? सिंपल, आपने z को टेंडिंग टू z naught करना है। fz आपका जिसको अप्रोच करेगा, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को, that will become the limit of the function at z. ये वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, तो आप कहोगे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करगी at z. जैसे हम रियल में करते आ रहे हैं सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now just see question number 2. You have to find the limit of the following complex functions. तो आपको ये लिमिट निकालनी है। एक मिनट, इसको और जूम कर देती हूँ मैं। अब दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now you have to find out the limit of the following complex functions. So limit z tending to iota. आपको देखना है कि इस पे क्या वैल्यू आएगी, राइट? Ma'am, 1. यस, तो आप पुट करके देखो। सबसे पहले इसमें तो सिंपल है, कोई रैशनल फंक्शन नहीं है, तो आपने z को रिप्लेस किया आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आया। आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 इट इज 1. So this is the limit of this function at iota. Clear है? Similarly, next part में z is going to 1 plus iota. Now z is going to 1 plus iota means x is going to 1 and y is going to I is going to 1 plus iota का मतलब क्या है? x 1 को जा रहा है, y भी आपका 1 को जा रहा है, राइट? तो अब यहाँ पर आप x को 1 और y को 1 पुट करो तो देखो क्या आती है लिमिट? 3 plus 4 iota. 4 है. So this is the limit at this point. Okay. Next आया tending to infinity पे, right? अब infinity वाले केस में हमने क्या करना है? मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा लें तो डेरिवेटिव की बजाय हम कॉमन निकालेंगे, जितने हमारी डिग्रीज कैंसिल आउट होती हैं वो करेंगे। Yes, So now ma'am. since it is infinity by infinity form, ठीक है, अगर आप z को इन्फिनिटी करते हो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? जितनी डिग्री मैक्सिमम बाहर निकल सकती है वो निकालेंगे। हमने नीचे से z स्क्वायर कॉमन निकाला, यू गेट 1 minus 1 over z होल स्क्वायर। अगर z टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 by z गोइंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है? अगर z गोइंग टू इन्फिनिटी है तो 1 by z 0 हो जाएगा। सो नाउ दिस इज कैंसिल आउट। अब आप पुट करो तो दिस इज आयोटा अपॉन 1 minus 0 which is iota, right? तो अगेन ये आपके पास डिफाइंड होगी। सो द लिमिट एट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी विल बी iota. iota. क्लियर है? सो हाउ टू फाइंड Yes, आउट द ma'am. लिमिट्स, दिस इज क्लियर। Yes, ma'am.
मैम एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, मेरा वो ना इंटरनेट लॉस्ट हो गया था। थर्ड पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दिस रैशनल फंक्शन व्हेन योर z इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर वैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो पहले ही तो आपके पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऊपर और नीचे आपके पास डिग्रीज जो हैं z की सेम है। सो वी कैन टेक कॉमन z कॉमन फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर। हमने z अगर कॉमन निकाला तो वी गेट z स्क्वायर आउटसाइड 1 minus 1 over z whole square. Okay, this z square is cancelled out. If your z is going to infinity, then 1 by z is going to 0. So when you put 1 by z to be 0, you get this is 0. So you get iota upon 1 minus 0, which is iota. So this iota is the limit of this function. Clear? Yes, मैम ma'am. एक बार थ्योरी आप दिखा दीजिए, क्या दिखा दूं बच्चे? वो जो थ्योरी जो आप इससे पहले क्वेश्चन से पहले करा रहे हाँ वो मैं दिखाती हूँ। So you are having a function fz, right? It is complex valued function. You have to find out the limit of this function at any point z0, which is also a complex number. So z tending to z0 means आपने इस function में z को replace करना है z0 से, right? अगर आपको एक complex number finite मिल जाता है, then you will say the limit of this function exists at z0. Okay? तो अलग-अलग rules हमारे लगते हैं कि जैसे हमने देखा पॉलिनोमियल जो आपके पास फंक्शन थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट रैशनल फंक्शन आने पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरा फैक्टर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट कर दो। ओके, एंड देन यू फाइंड आउट द लिमिट। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. This is the limit of how to find the limit of a complex valued function. Now the next is इसी को ये अब बताओ continuity से क्या मतलब है? What do you mean by continuity? इसी में बताओ, कॉन्टिन्यूटी में भी हमने लिमिट ही देखनी है एट सम पॉइंट z0 ऑफ सम गिवन फंक्शन fz। क्या फर्क आता है दोनों में? लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन पे और z0 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यस, और ये जो w है वो बेसिकली आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाए एट z0, राइट? सो इसका मतलब फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट z0, ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए and these two are equal, then you say your function is continuous at z0. okay, तो पॉलिनोमियल जितना हमने जो एग्जांपल किए पॉलिनोमियल वाले जो हमने अभी ये किया था 2 का a पार्ट एंड b पार्ट, ये तो ऐसे सच है, इसमें कोई है नहीं। आपका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑल दीज फंक्शंस आर डिफाइंड, राइट? तो अगर आप आयोटा पे रिप्लेस कर रहे हो, ये आयोटा पे ही फंक्शन की वैल्यू आ रही है। So this function is continuous, this function is continuous, e to the power z is continuous, cos z is continuous. यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? This function is not continuous at 1 पे continuous नहीं है, right? तो अगर आप z tending to infinity की जाए 1 पे निकाल रहे होगे लिमिट, तो वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, because your function is not continuous at 1, it is infinity at 1, right? Defined नहीं है वहाँ पर। This point is clear? So function continuity का क्या मतलब है? You find out the limit of the function at z0. If it is the value of the function at that point, then you say your function is continuous at that point. Okay? Function continuous में you can give an example of exponential function, cosine of z, sine of trigonometric functions, any polynomial, right? They all are continuous functions. Okay? So after continuity we have differentiability. सेम जैसे रियल में चल रहे हो वैसे ही यहाँ पर आपकी सारी चीजें डिफाइंड हो रही हैं। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है? यस, कौन बताएगा? व्हेन विल यू से योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट z0? आपका फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स है, पॉइंट भी आपका कॉम्प्लेक्स है, क्या कहोगे? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट z0, कब कहोगे? मैम एक तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और नंबर सेकंड उसका जो कर्व आएगा वो मतलब स्टीप नहीं होना चाहिए, वो मतलब स्मूथ कर्व रहना चाहिए। और लिमिट उसकी फॉर्म में क्या आएगी डेफिनेशन? जैसे रियल में आप करते हो, लिमिट की फॉर्म में क्या डेफिनेशन बनेगी? लिमिट की फॉर्म में
z approaching to z naught, Z नॉट कंटिन्यूस होना चाहिए. fz minus fz naught divided by z minus Z z naught. minus Z अगर naught. ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फाइनाइट आ गई, तो आप कहोगे योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z naught. दिस इज नोटेड बाय f dash z naught. राइट, यही करते हो आप रियल में भी. यस मैम. Okay, so you say your function is differentiable at any point z naught if this limit exists and finite. Okay, and if it is true for every point of the domain, then it means your function is differentiable function. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you give any example of a differentiable function? मैम पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी. Yes, polynomial, exponential, Exponential. cosine, sine, all these are differentiable function and they are continuous also. So we know that every differentiable function is continuous, right? But converse जो है that may not be true. Right? So Yes ma'am. after Yes, this we have, depending on this we have some CR equations. Now what is that CR equation? That is called Cauchy, C-A-U-C-H-Y, Cauchy-Riemann equations. In short we call this as CR equations. Now what are these equations? अभी हमने कहा कि आपके पास एक फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही डिफाइंड है और जो इटसेल्फ भी कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स होगी. अगर कॉम्प्लेक्स है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज मेरा फंक्शन है जेड स्क्वायर, सिंपल जेड स्क्वायर, राइट. z मेरा है x plus iota y. तो I can express this function in the Cartesian by substituting z to be x plus iota y, right? Or we know that z square is nothing but z into z conjugate. Yes ma'am. So we can write this as x plus iota y into x minus iota y. और इसको ऐसे ही लिख देते हैं. तो आपके पास देखो क्या बना. This is x square, ये आपने किया प्लस y स्क्वायर. Y square. राइट. तो ये तो आपके पास ओनली रियल फंक्शन बन रहा है. फिर कोई और ले लेते हैं. लेट्स सपोज यू आर गिवन अ फंक्शन z बार ले लो. तो अगर z आपके पास x plus iota y है, तो when you substitute z over here you will get this is x minus iota y, right? So this is your u and minus y is your v. तो जब आपने z को x plus iota y सब्स्टिट्यूट किया इस फंक्शन में, जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा, नया फंक्शन जो बनेगा वो भी आपके पास क्या आएगा, नई वैल्यूज जो आएंगी वो भी कॉम्प्लेक्स होंगी. तो उनको भी आप इन द फॉर्म ऑफ u plus iota v लिख सकते हो, where u and v they are the real numbers. Okay? अब मुझे बताओ, एक्सप्रेस करो. मैम हाँ, मैम ये एक सेकंड, ये आप इस बताएंगे आप ये वाला. मैंने मैं थोड़ा इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा. मैं एक और ही एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज e to the power z. अब इसको बताओ कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखोगे e to the power z को, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, where z is x plus iota. पुट करो, क्या बना. E की पावर x plus iota y. और सिंपलीफाई करो, क्या आएगा. मैम e raised to power x dot e Cos y plus iota sin. e Iota. हाँ Yes. हाँ. ये आ गया. यस मैम. तो अब यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज योर u, व्हाट इज योर v. मैम cos y मैम u है और sin y मैम v. No, this complete is u Ex cos y is u and this ex sin y complete is v, right? Here Yes मैम. u और v दोनों x y के फंक्शन भी हो सकते हैं.
राइट? मतलब z में तो ये ओनली आपके पास x था, ये ओनली y था, बट जब आपने z को फंक्शन में पुट किया तो ये आपके पास यहाँ पर आयोटा से पहले मतलब जो रियल पार्ट है इस फंक्शन का वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे जो रियल पार्ट है फंक्शन का वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है जो फंक्शन का, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दोनों का फंक्शन हो सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर? माइट बी सिंगल Yes, का ma'am. बने पर दोनों का भी बन सकता है, जैसे इस केस में दोनों का बन रहा है, दोनों वेरिएबल्स पे डिपेंडिंग आ रहा है, Yes, ma'am. राइट? तो whenever you are having a function of two variables, we know that कि हम उनके partial derivatives की बात कर सकते हैं, राइट? इन सब की बात कर सकते हो, u के विद रिस्पेक्ट भी और v के विद रिस्पेक्ट भी, राइट? बट हमें गिवन ही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट सम पॉइंट z नॉट, दिस इज गिवन टू अस। इट मींस अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z नॉट पर तो ऑल दीस पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट पर। Yes, ma'am. तो अगर ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर तो CR इक्वेशंस क्या आएंगी? CR इक्वेशंस विल बी ux is same as that the partial derivative of v with respect to y, and the partial derivative of u with respect to y is minus times the partial derivative of v with respect to x. This is the CR equation. Now once again see क्या आपके पास स्टेटमेंट है, whenever your function is differentiable at some point z naught of the domain, then where fz जो है वो आपका u plus iota v है, right? u जो है it is a function of two variables xy, v is a function of two variables xy. Then you can find out the partial derivative of u as well as v with respect to x and y, and they satisfying this equation. This is said to be Cauchy-Riemann equation, CR equation. तो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ऑलवेज ये सेटिस्फाइंग होंगी। इट मींस CR इक्वेशन जो है दे आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव of the function fz at any point z. Now why they are the necessary conditions? Because whenever your function is differentiable at some point ये always exist करेंगे, ये always equal होंगी, right? It means अगर किसी point पर ये equal नहीं है तो क्या कह सकते हो आप? अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही है तो आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए? नॉट डिफरेंशिएबल। वेरी गुड। अगर आपकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो क्लियरली फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो सबसे इजीएस्ट वे क्या है चेक करने का कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर कि नहीं, आप सबसे पहले CR इक्वेशन चेक करके देखो। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर? क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये थ्योरम मतलब, और आप कह रहे हो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये थ्योरम रॉन्ग हो जाएगी। ओके, because if your function is differentiable at some point then CR equations are always satisfied. ये always imply करता है इस चीज को। If they are not satisfied it means your function cannot be differentiable, वो हो ही नहीं सकता। This point is clear? So it means these are the necessary conditions for the existence of derivative. Yes, any doubt? No, ma'am. This point is clear. If your function is differentiable, तो CR equations always satisfied होंगी. Okay? So अगर किसी क्वेश्चन में CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही किस पॉइंट पर, इट मींस आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट? बट दिस CR इक्वेशंस आर नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ये सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। इसका क्या मतलब है? हमको और भी कोई ये कंडीशंस चाहिए।
इसका मतलब ये है कि अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, फिर हम कुछ नहीं कह सकते, फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके, दे आर नॉट द सफिशिएंट वन, ये सफिशिएंट नहीं है। ओनली ये इन दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो उससे हम ये नहीं कह सकते फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मैम इसका कन्वर्स तो ट्रू होगा ना, कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ये हम कह सकते हैं कि ये होगा। हाँ, या वो भी तो थ्योरम भी कह रहा है कि whenever your function is differentiable at some point z naught, CR equations always satisfied होंगी। ठीक है, अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो भी क्लियर है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया फिर बाय यूजिंग दिस थ्योरम CR इक्वेशन को सेटिस्फाई होना था, बट वो हो नहीं रही, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर। ओके। So if CR equations are not satisfied, फिर तो क्लियर है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो भी क्लियर है कि CR इक्वेशंस ऑलवेज सेटिस्फाइड होंगी। नाउ द कन्वर्स, मान लो कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इन दोनों को छोड़ दो, अब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आप क्या कह सकते हो अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी? तो ये कहता है वी आर नॉट श्योर about the differentiability. The function may or may not be differentiable at some point. This point is clear? अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए फिर हम श्योर नहीं है फंक्शन may or may not differentiable होगा। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तो 100% CR इक्वेशन सेटिस्फाइड, या CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो भी 100% हम श्योर है फंक्शन डिफरेंशिएबल। These two things are clear? Yes, ma'am. So जो आपका ट्यूट शीट में क्वेश्चन नंबर 3 है, that is based on this. Show that CR equations are satisfied at origin. ये incomplete है, इवन आगे भी हो सकता है ये क्वेश्चन। Show that CR equations are satisfied at origin for the following function, but your function is not differentiable at 0, 0. Right? इसको आगे भी इवन आप कर सकते हो। तो थर्ड टाइप प्रॉब्लम आपके पास क्या बनती है कॉम्प्लेक्स में? The question आपके पास किस टाइप का होगा? For any function fz, you have to show that CR equations are satisfied at some point, और generally आपको 0, 0 दिया होगा, satisfied at 0, 0, but your function is not differentiable at 0, 0. तो शो करना है, ये तो क्लियर है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप इस पार्ट को कैसे करोगे? पहले मैं ओनली CR वाला बता रही हूँ, इसको आप, या पहले ये बता देती हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे नहीं है। मान लो मेरे को फंक्शन गिवन है conjugate of z square divide by z when your z is non-zero, it is 0 when your z is 0. फंक्शन क्लियर है? This is conjugate of z square divided by z when z is non-zero, and when your z is 0, it is 0. We have to show that function is not differentiable at 0, 0. इसका मतलब क्या है कि जब आप लिमिट निकालोगे 0, 0 पर fz माइनस f at z नॉट, ये z नॉट है आपका, डिवाइड बाय z माइनस z नॉट, ये आपकी यूनिक नहीं आ रही, not unique, right? It means your function is not differentiable at z naught, and here z naught is 0 plus iota 0, 0, 0 है। This point is clear? Question clear हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have to show that your function is not differentiable, means this limit is not unique. मतलब अगर हम कोई 3 डिफरेंट पाथ या 2 डिफरेंट पाथ लें, लिमिट सेम नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, राइट? तो अब आप f'0 निकाल कर देखो क्या आएगा। योर लिमिट z इज गोइंग टू 0, योर fz माइनस f at 0 डिवाइड बाय z माइनस 0, तो क्या बना? z at what is fz क्या होगा? दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर डिवाइड बाय z। f at 0 क्या होगा? f at 0 is 0
डिवाइड बाय जेड। तो ये आपके पास बन गया z कॉन्जुगेट स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर, लिमिट z गोइंग टू 0। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट हमने डेफिनेशन अप्लाई की है, z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f0 डिवाइड बाय z माइनस 0। fz की वैल्यू पुट की, f0 की वैल्यू पुट की, राइट, z माइनस 0। नाउ यू गेट दिस फंक्शन। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। नाउ यू राइट डाउन, हमें क्या निकालना है, z टेंडिंग टू 0 z कॉन्जुगेट स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर। अब इसको हम x प्लस आयोटा वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ गया, where your x and y they are going to 0,0. Now just see, if you are considering x-axis, path आपने चूज किया x-axis, because 0 0 से पास होता हुआ आपका x-axis भी है, y-axis भी है, ये वाली लाइन भी है, y is equal to x वाली लाइन, y is equal to 2x वाली लाइन भी है, and so on. All these are passes through 0,0. So we can choose any path, कोई भी path choose कर सकते हैं। पहला मैंने x-axis लिया, x-axis का मतलब y क्या है, 0। तो आप y यहाँ पे 0 पुट करो, क्या आएगी लिमिट देखो, जब आपने y को 0 पुट किया, यू गेट x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x गोइंग टू 0, ये कैंसिल हो गया, यू गेट 1। सिमिलरली व्हेन यू चूज y एक्सिस पर आपका x 0 होगा, तो जब आपने x को 0 0 पुट किया, क्या आया, माइनस आयोटा y स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा y स्क्वायर। ओके, ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 कैसे आ रहा है, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं देखा, आयोटा स्क्वायर किया आपने, which is -1 upon -1 plus 1। But if you consider a path y is equal to x, along y is equal to x path along this line, तो देखो लिमिट क्या आएगी, so ये बना 1 minus iota whole square upon 1 plus iota whole square. Now you simplify this, 1 plus iota square which is -1 minus 2 iota divided by 1 plus iota square which is -1 plus 2 iota। तो ये आपके पास क्या आ गया, -1। तो ये लिमिट क्या आ रही है, -1। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सो आपका लिमिट यूनिक नहीं आ रहा, इस पे 1 था, इस पे 1 था, बट जैसे ही आपने पाथ लिया y is equal to x, it also passes through 0 0, इस पॉइंट से पास हो रही है, but the limit is not same, right? Yes मैम टाइम हो गया मैम, okay, नेक्स्ट क्लास हमारी। हाँ कोई नहीं, बस ये पॉइंट कर लो, since the limit is not unique, so therefore your function is not differentiable at 0,0. So this point is clear? Clear है ये? यस मैम। यस मैम। So अब नेक्स्ट पार्ट हमने ये करना है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो CR इक्वेशन के लिए मुझे U निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा, मीन्स इस फंक्शन को कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आओ इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके, और u और v निकालो, फिर आप उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना 0 0 पे, और देखोगे वो सेम आ रहे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाना। नेक्स्ट टाइम दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है? ओके, यस मैम। सो बेस्ड ऑन दिस आपका ट्यूट शीट थर्ड, ये 9th का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हो।